welcome to another day and another question of TP. And today we are going to solve a very famous problem, which is house robber problem. It is a very similar kind of problem like coin change problem. So let's first of all understand the statement that you are a professional robber, banna mat, but it's just a statement. And you are robbing houses along a street. Fine. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing that each of them is that a adjacent house have security system connected. It will automatically contact the police if two adjacent house were broken into on the same night. We are giving integer array num and representing the amount of money each house have. So we have to return the maximum amount of money we can collect without alerting the police. So these are the examples I have copied it over here. Okay. So you will see that in example one, like it's nums arrays here. So we have to take the maximum out of it. But remember one condition that we cannot go to the very next if we have robbed the last one. अगर मैंने एक के अंदर चोरी कर ली, like for example, if I have stolen in this one, okay, then I cannot go into two. Fine, I cannot go into two. So keep this thing in mind. So we have to go to three next time, and the maximum profit will be four. Fine. Okay. So straightforward. Now come to the next example. Here you can see like we enter into 2, fine. So then we skip this one, then we went to this one, which will total into 11, and then we went for this one, which will total into 12. Okay, there can be conditions, you know, okay, where the maximum would be here and here. Could be a condition. So should we do? So I guess you all remember the condition that I told you, like where we skip and include one. So it's like I'll tell you what recursion we will be making. Solve. Fine. The size is very small. Wait. Okay. Solve and int of I always an index. Then nums array will be there. Fine. Then a sum will be there. I guess this is enough for it. Open up the brackets. अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार. This is what she said. Okay, fine. Leave it. Now come over here. If I is greater than nums dot size minus of 1, then we have to return 0. This is your base condition. Fine. And now int of include, again include exclude wala logic. ठीक है. Solve and I we have to go to, remember if we are, अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमें दो घर आगे जाना पड़ेगा. मतलब आई अगर एक बार आता तो यहाँ आता ना, तो हमें दो घर आगे जाना पड़ेगा. मीन्स आई हैव टू ऐड वन मोर इनटू इट. ठीक है. नम्स एज इट इज पास करेंगे. सम प्लस ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस ऑफ नम्स ऑफ आई. मैं समझाऊंगा मैंने क्यों करा. वैसे अगर हम सम नहीं यूज करेंगे तब भी चल जाएगा, बट उस पर डीपी लगाने में मुश्किल होती है. फाइन. तो एक्सक्लूड में तो वो तुम्हें पता ही है, सबसे इजी पार्ट यही होता है एक्सक्लूड. ठीक है. आई प्लस वन कॉमा नम्स सम. ठीक है. और हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड. इतना सा काम है. ठीक है. लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट फॉर यू सो दैट ये थोड़ा इजीली विजिबल होगा. आई टेक इट डाउन साइड. Wait, I'm new to this board for you. Okay, fine. Okay, now it's it. So let's understand this function. This is the int of solve. It will be returning int. And when you see here, this is the index that we'll be using. Iterate over the whole array. Then if I is greater than size of the array, then we have to return 0. That's very base condition you all know. Then we have created include. सो इन इंक्लूड वट वी आर डूइंग, हम चोरी कर रहे हैं. फाइन. तो अगर मान ले कि हमने किसी के अंदर चोरी कर ली तो उससे दो आगे जाना पड़ेगा, फिर ही हम उसके अंदर दोबारा चोरी कर सकते हैं, वरना पुलिस को पता लग जाएगा. फाइन. तो हम क्या करें, प्लस टू कर रहे हैं और वो वाला जो है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर ले रहे हैं. फिर एक्सक्लूड आ गया. एक्सक्लूड का भी सिमिलर सही है कि उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्किप कर दिया, अगले वाले पे चले गए. ठीक है. तो हम उसके अगले वाले से चोरी करना शुरू करेंगे, फिर ये वाला फंक्शन कॉल आउट दोबारा होगा. ठीक है. फिर रिटर्न कर देंगे इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको. आई गेस दिस इज क्लियर. बाकी भी कोड करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो वही है, रिटर्न ऑफ सॉल्व ऑफ 0, नम्स कॉमा 0. ठीक है. नीचे आ जाओ. एक आई एन टी सॉल्व खोल लो एंड इसके अंदर आई एन टी ऑफ आई. ठीक है.
वेक्टर ऑफ आईएनटी ऑफ एंड ऑफ नम्स कॉमा, और इसमें एक आईएनटी ऑफ सम खोल लेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, एक तो वो लगाएंगे इफ, जो अगर आई इसके साइज से बड़ा हो जाए, डॉट साइज के इक्वल बड़ा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे जीरो। पहला काम तो यही हो गया, बेस कंडीशन सबसे पहले आती है, फिर आई एन टी इंक्लूड लिख दिया। अब एक कोड ध्यान से सुनो जो मैं बोलूँगा। अगर हमने चोरी करी तो एक घर छोड़ के अगले घर में गए, ठीक है, नम्स वो एरे का वैसे के वैसे पास करा, सम में क्या करा, प्लस कर दिया जो उस घर का जो अमाउंट है उसको। ठीक है, और हमें वैसे इस आईएनटी के अंदर भी प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई, यही है, क्योंकि इसी का मैक्सिमम तो हम रिटर्न करेंगे, अगर उसकी वैल्यू ही नहीं इंक्रीमेंट करी तो हम रिटर्न क्या करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का तो बहुत ही सिंपल होता है कि चलो ठीक है, एक घर मैंने छोड़ दिया, अब अगले वाले घर में जा रहा हूँ, तो आई प्लस वन नम्स एंड सम, एंड आई हैव टू रिटर्न मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड कॉमा exclude, I guess this does the work. Let's run it. Yep, it does the work. So अभी एक और बार सबमिट करके दिखाता हूँ, टीएलई आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये क्वेश्चन ही टीपी का, तो इसमें टीएलई तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लिमिट एक्सीड तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं। अब मैं बताता हूँ सम की यूज कर, अगर मैं सम नहीं भी यूज करूंगा ना तब भी ये हो जाएगा, दो पैरामीटर्स पे हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें हमें जो स्टेट है ना इसकी, इसकी स्टेट को हम सम की जगह सॉल्व करते फिरेंगे, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हमें डीपी चाहिए, तो डीपी में क्या होगा, सम कितना, सम तो ये भी हो सकता है ना कि एरे का जो मैक्सिमम सम होगा, टोटल सम होगा, उतनी हमें एरे बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर पहले तो हम सम को कैलकुलेट करते हैं, आईएनटी ऑफ सम इक्वल टू जीरो फॉर, अगर ज़्यादा स्पीड में करना होता आउट ऑफ आए। ठीक है, इसमें क्या करता है, हमें टाइप कम करना पड़ता है, सम प्लस इक्वल टू आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, आईएनटी का, इसका नाम रख देंगे डीपी, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स क्या पास करेंगे, नाम स्लॉट साइज कॉमा, अभी जो अंदर वाला वेक्टर है उसको सेट सेट कर रहा हूँ मैं, तो उसका सम प्लस वन लेके जाएंगे और उसको हम असाइन करेंगे माइनस वन हर एक चीज के लिए। ठीक है, सब कुछ नहीं, डीपी पास, ये वेक्टर उठाओ, इसको कॉमा डाल के यहाँ पेस्ट कर दो, और हाँ एंड जरूर डाल देना, वरना वो कॉपी करने में टाइम लगेगा, तो तब भी टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। ठीक है, कॉमा डीपी एंड डीपी ऑफ आई कॉमा सम इक्वल टू, ठीक है, एंड इफ dp of I and sum not equal to minus one, turn dp of I sum, let me, पर इसको ऐसे नॉर्मली सबमिट करके देख लेते हैं, एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करूंगा मैं, रन करा पहले तो, एक्सेप्टेड ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इंटू एम होना चाहिए, अभी 2n आ रहा है, इसका मैं रीजन देता हूँ क्योंकि ये रिकर्सिव कोड। ठीक है, बट अगर तुम इसकी असली कॉम्प्लेक्सिटी चेक करोगे, अगर तुम अपने हिसाब से भी देख लो, तो इसका o ऑफ n क्रॉस ऑफ m जा रहा है। एक बार अगर कंफर्मेशन लेनी है, तो हाँ हम चैट जीपीटी एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को कंफर्म है कि हाँ, क्योंकि हम डीपी में आई और सम यूज कर रहे हैं, सिर्फ दो पैरामीटर है, तो एन क्रॉस एम जाएगा, जहाँ पे एन क्या है, जो वेयर n is the size of the array and m is the sum of the array, फाइन, यही है। अगर तुम्हें आइटरेटिव कोड्स भी करने हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आइटरेटिव कोड्स, इसी में से आइटरेटिव कोड बनाना सिखाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा कि उससे क्या होगा, तुम रिकर्सिव कोड लिख पा रहे हो तो तुम हर एक जिसका रिकर्सिव कोड लिख लिया उसका तुम आइटरेटिव खुद बना लोगे, वो एक तरीका होता है, वो मैं सिखा दूंगा। अगर सीखना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, सब कुछ करो। मिलते हैं कल दोबारा, बाय।